سینیٹر فیصل وابڈا کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وہ جیل میں ہوتے ہیں یا ان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو اس پہ سیاست پھر 40-50 سال تک چلتی ہے، تو وہ آپ کیا ایک کلیئرٹی ہو چکی ہے۔ دوسرا بہت زبردست پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی بیک ڈور میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور بیگم صاحبہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ فیڈ بھی کر رہے تھے، اور بیرونی اور اندرونی بڑا پریشر ہے اور اس پریشر کے تحت سارا کچھ جو ہے وہ مینج ہو رہا ہے، اور اسی کے تحت 190 ملین پاؤنڈ کی کیسز کے اندر بھی تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بڑا پروپیگنڈا زبردست قسم کا چلانے کی کوشش کی، لیکن میں ان کو بار بار آپ لوگوں کے سامنے 2.5 سال پہلے نہیں 3.5 سال 4 سال پہلے جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کی اپروول ہو رہی تھی، میں فیڈرل منسٹر تھا کیبنٹ کا، میں نے اس وقت خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے، یہ آپ کے لیے نیب کا کیس بنے گا اور آپ کو جیل ہوگی اس کے اندر۔ اس وقت وہ نہیں مانے، اس کے بعد بھی میں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ اوپن اور شٹ کیس ہے، اس میں تو گل مک گئی ہے اب، ٹھیک ہے جی، آپ اس کے اندر کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے، یہ پروپیگنڈا جتنا بھی کر لے، اور جرم کی سزا ہوتی ہے، جرم آپ کریں گے، قتل کریں گے، آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کو سزا ہوگی۔ اب آپ سے کسی نے کروایا، آپ کی فیملی میں کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا، آپ کے دوست احباب نے اٹھایا، آپ کی پارٹی نے اٹھایا، یہ تو کوئی نہیں مانے گا نا، سائن تو آپ نے کیے، سائن آف آپ نے کیا، اور اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھا، اور اسی کے تحت جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، وہ پروپیگنڈا بھی نہ اس کی غبارے سے ہوا آپ کو آج سنڈے آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ ساری کی ساری چیزوں کی ہوا نکل جائے گی۔ جو ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم پہ پریشر ہے، ہم پہ انٹرنیشنل پریشر ہے، تو یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا ہے، کیونکہ جرم کیا آپ نے تو یہ تو میں 3.5-4 سال پہلے جو کیبنٹ کا حصہ تھا تب آپ کو بتا رہا تھا، خان صاحب کو بتا رہا تھا، اس وقت بھی میڈیا کو بتا رہا تھا کہ یہ کیس بنے گا اور اس میں خان صاحب کو سزا ہوگی، ان کے ساتھ جتنے اور بھی ہواری ہیں ان کو بھی سزا ہوگی، تو یہ تو سزا، اس میں تو کوئی دو رائے اب ہونی نہیں چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جو بیرون ملک پریشر تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 3 ہفتے بعد میں واپس ملک میں آیا ہوں، اور میں نے کہا تھا اس کے اندر میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کی جان کو ان کے لوگوں سے خطرہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 3 ہفتے بعد جب میں آیا ہوں تو وہ کافی ملکوں کا پریشر بھی جو سو کالڈ بنیادی طور پہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا وہ بھی کافی تھم گیا، کیونکہ آپ جب جا کے سچائی کسی کو بتائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ بھائی یہ پروپیگنڈا، یہ ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے پاپولر ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ہر چیز سے بالا تر ہیں، قانون سے بالا تر ہیں، یا آسمانی مخلوق بن گئے، نعوذ باللہ۔ آپ نے پاپولرشپ کے اوپر آپ سنبھال نہیں سکے، آپ نے غنڈہ گردی کر کے دیکھ لیا، آپ نے دھرنے کر کے دیکھ لیا، آپ نے مرنے کر کے دیکھ لیا، آپ نے 26 کا کر لیا، 9 مئی کر لیا، ریاست کے خلاف چیزیں کر لی، ریاست کے تنصیبات کو اڑا دیا، آگ لگا دی، آپ سب چیزیں کرتے چلے گئے، کنفرنٹیشن کی سیاست لے کے آگے بڑھتے چلے گئے، اور آپ کو لگا کہ شاید مجھے اس کا کوئی فائدہ بدماشی کے ذریعے ہو جائے گا، پاپولر ویو کی طرح ذریعے ہوگا، اور آپ کو میں کہتا رہا کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ان لوگوں کی ہواریوں کے اوپر نہ جائیں، یہ اندرون خانہ آپ کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ جیل سے زیادہ خدا نہ خواستہ آپ کی جان بھی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جان لیں گے تو ان کو مزید فائدہ ہوگا۔ جو آج اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، وہ خان صاحب اگر مفروضے کے طور پہ باہر آئے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے اقتدار میں نظر نہیں آئے گا۔ اور آج جو آپ نے پریس کانفرنس دیکھی کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم تحریری طور پہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں، جو پی ٹی آئی نے ملاقات کے بعد کہا ہے، تو کہاں مولا جڑ کی سیاست کر رہے تھے، کہاں غنڈہ گردی کی سیاست کر رہے تھے، کہاں بدماشی بندوق کی سیاست کر رہے تھے، اب آپ کشکول لے کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں۔ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کو تو آپ مانتے ہی نہیں تھے، تو جب آپ مانتے نہیں تھے تو آپ نے اس کو لیگلائز بھی کر لیا۔ آپ عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ کریں تو عدالتیں اچھی ہیں، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں ہی بری ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کرنے کے لیے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا، آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہمارا کوئی واسطہ آپ سے نہیں ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی ہے۔ تو یہاں تک تو اب چیپٹر آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ نہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہے، نہ بیرون ملک سے کوئی پریشر ہے، نہ انٹرنل کوئی پریشر ہے، اور اس کی ہوا آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی، وہ ہوا تو نکل جائے گی۔ تو یہ چیپٹر تو کلوز ہے، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس پہلے سے تھا، اس میں کوئی نئی چیز ہونے والی نہیں ہے، جرم کی سزا ہونی ہے اور وہ ہوگی۔ انفارچونیٹلی کروایا گیا، کیا انہوں نے، تو وہ زوم میں تھے۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، ہماری فوج نے، ہماری ایف سی کے لوگوں نے، ہماری پولیس والوں نے کے شہادتیں دی، خون دیا، پانی کی طرح خون دیا، لیکن اب میں آپ کو ایک اچھی خبر سنایا جا رہا ہوں کہ اس خون کے رنگ کی تعبیر نظر آنا شروع ہوگی ہمارے جھنڈے کے اندر، ہمارے خطے کے اندر۔ پاکستان جو ہے اس پورے خطے کے اندر
बड़ा वाइब्रेंट होकर नजर आने वाला है। और ये भी मैं कोई आपसे महीनों सालों की बात नहीं कर रहा, अभी इन्हीं आने वाले हफ्तों से आपको नजर आएगा। और अगर हमारे पास एक टीम का एक अच्छा प्लेयर आ गया है, डेमोक्रेटिक लोग, जमहूरी लोग बड़ा परेशान होते हैं जब मैं कहता हूँ कि क्रेडिट आप फौज के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर साहब को दे दें, तो कहते हैं कि जमहूरियत का हुसन है। तो चले मैं जमहूरियत का हुसन समझते हुए उनको टीम लीडर बना देता हूँ या टीम का हिस्सा बना देता हूँ। हम सब एक मैच खेलते हैं, रोनाल्डो भी खेलता है तो, लेकिन रोनाल्डो सामने नजर आता है, बाकी टीम मेंबर्स भी गधे घोड़े उसका चल रहे होते हैं, लेकिन उसका किकिंग स्टाइल, उसका विजन, उसका स्टाइल, उसका डॉच करने का स्टाइल रोनाल्डो का पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह लकीली फॉर्चुनेटली हमें एक सिपहसालार मिले जो बाजार में जिनका नाम इंटरनेशनली जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, उस ट्रस्ट करते हुए उनकी बदौलत, उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान एक वाइब्रेंट खत्ते में नजर आना शुरू होने वाला है, आपको नजर आएगा। और उसी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत आपको बहुत कुछ इंटरनेशनल हवाएं पाकिस्तान के फेवर में नजर आना शुरू हो जाएंगी आने वाले हफ्तों और दिनों से। अब शुरू होगी वो चीजें, उसका फायदा नेचुरली एलाइज और गवर्नमेंट को भी होगा, शहबाज शरीफ से भी होगा कि उन्होंने ये जांच लिया कि एक आदमी में काबिलियत है, उसका बेनिफिट पूरे मुल्क को मिल रहा है, तो वाई नॉट। अगर आपकी वजह से मुझे कोई बेनिफिट मिलता है तो वाई नॉट। पहले आज तक हमसे डू मोर कहा गया है, लेकिन इस बार मेरी तवक्को है, जो मैं इतना 3 हफ्ते का ट्रिप करके आया हूं, तो जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे इंटरैक्शंस हैं, उसके तहत हमारे सिपहसालार में समझता हूं कि वो अब इस पोजीशन पे पाकिस्तान को लेके आएंगे कि वो कहेंगे व्हाट्स इन इट फॉर मी एज इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के लिए क्या है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है हम सबके लिए, इसको हमें वेलकम करना चाहिए। और जो 20 जनवरी से ऊपर नजरें टिका के बैठी हुई है पीटीआई, मेरे ख्याल से उनको उधर बहुत सख्त मायूसी होने वाली है और पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त किस्म की कामयाबी होने वाली है, जिसके फल नेचुरली जो होगा वो तोड़ लेगा। क्योंकि टीम मेंबर हमारे पास सॉलिड है, टीम लीडर हमारे पास सॉलिड है, और जो फौज की कुर्बानियां हैं वो अब कौम को सामने नजर आएगी। और ये लड़ाई जो मैं 4 साल से रोकने की कोशिश कर रहा था, खान साहब नहीं रुके, अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने कोई जगह भी नहीं छोड़ी। और अब भी जो स्ट्रैटेजी है कशकोल के साथ, वो स्ट्रैटेजी भी एक फ्लॉप स्ट्रैटेजी है। अभी भी मैं चाहता हूं कि मुज़ाकरात से जो आग जंगल में लगती चली जा रही है वो कर्टेल हो जाए, उसमें मुज़ाकरात से आगे बढ़े, नेक नियति से खुदारा इमरान खान साहब के साथी उनकी जान बख्श दें, उन पर रहम करें। हम सब ने उनसे सियासत सीखी थी, हम में से कोई लीडर नहीं समेत मेरे, उनकी बदौलत हम इलेक्ट हुए थे। लेकिन हमारा काम ये नहीं कि हम अपने लीडर को, मेरे तो नहीं है वो, लेकिन जिनके लीडर हैं वो, मैं भी उनकी जान के मामले में बड़ा कंसर्न हूं कि कोई ऐसी चीज किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। तो उसके तहत अगर आप टाइमली चीजें देखें तो अब पाकिस्तान का 2025 का जो साल शुरू हुआ है, इसमें आज संडे है, मंडे ऑनवर्ड आपको पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरियां नजर आएंगी। मैं कुछ चीजें खुला के अभी आपको नहीं बोल सकता कि चीफ की बदौलत एक बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत एक अच्छा पाकिस्तान के लिए चीज होने जा रही है, और उसकी अगर अनाउंसमेंट गवर्नमेंट अपने खाते में करना चाहती है तो मैं उनको खुशी एंजॉय करने दूंगा। बाकी जहां तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी अडियाला जेल के बाहर, मुझे अफसोस हुआ कि ये किस दौराए पे आ गए हैं, किस जगह पे जा रहे हैं। बंदूक लाठी पॉपुलरिज्म के बाद अब कशकोल लेके दर दर की भीख मांग रहे हैं, और फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को इन्होंने लीगलाइज किया है। वही कोर्ट्स जो बहुत अच्छी थी वो कोर्ट्स अब बुरी होने जा रही हैं, वही फौज जो बहुत बुरी थी वो बहुत अच्छी होने जा रही है। तो ये सब चीजें कौम भी देख रही है, उनके सपोर्टर वोटर भी देख रहे हैं, और वो भी सब थक चुके हैं कि ये आदमी किस जगह पे इसको लोग ले गए हैं। ये जो चोरी हुई है, ये चोरी दिन दहाड़े हुई है, इसमें बंदूक चलवाई गई है या चलाई तो खान साहब ने, तो बड़ी जिम्मा तो वो नहीं हो सकता, जिस वजह से मैं उनको कैबिनेट में इस चीज से रोक रहा था कि खुदारा ये काम ना करें। और मेरे लफ्ज थे ये नैब का केस है, आप जेल जाएंगे इसके। जब हम इक़्तिदार की अरूज पे थे, तो मैं तो इस पूरी चीज का विटनेस भी हूं, मेरी आंखों के सामने हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात बड़ी क्लैरिटी से समझ आ गई होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर।
جہاں بہت ساری کلیئرٹی ہے وہاں بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، اور ہمیں ڈیو کریڈٹ جو ہے جس کا ہے اس کو دینا چاہیے، اور دعا گو ہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں اور جیسا میں آیا، میں بھی اگر بیرون ملک سے آیا ہوں اور وہاں میں نے لوگوں کو بتایا یار وہ کچھ چیزیں تھم گئی ہیں یا اب اس طریقے کی کنسرنز نہیں نظر آ رہے، تو میں نہیں کہوں گا یہ میرا کریڈٹ ہے، میں تو SIFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، یہ فوج کی قربانیاں ہیں، اس میں ہمارے پولیس والوں نے بہت شہادتیں دی ہیں، اور ایک اسمارٹ رول پلے کیا ایلائز نے اور گورنمنٹ نے کہ ایک آدمی اگر ایک پاکستان کو ایک جگہ پہ لے کے جا رہا ہے اور ڈو مور کی جگہ واٹس ان اٹ فار می کی پوزیشن میں پاکستان کو لے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست خبر ہے۔ یہی تھا آج پریس کانفرنس کا متن کہ جس بے جانی میں ہم سب کیفیت میں ہیں وہ کیفیت آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جرم کے اگینسٹ سزائی ہوتی ہے، پھول گاؤں کا ہار اور ایگزیکٹو آرڈر کی طرح معافی نہیں ہوتی۔ کیا ایسا کوئی ہو رہی ہے کہ مارچ تک جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے گورنمنٹ سطح پر کچھ تبدیلیاں ہونے والی ہیں جو کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی، تو کوئی ایسا کچھ ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے یا اس طرح کا نتیجہ لایا جا رہا ہے کہ سب کو قابل قبول ہوگا؟ ایسی بات ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے خیال یہ کہ جو سب بیس کر رہے تھے، میری ازمپشن ہے، میری سوچ ہے، میری معلومات ہے، میرا جو دورہ تھا ملک سے باہر، اس کے تحت میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جس پہ سب سے زیادہ PTI ریلائی کر رہی تھی وہ PTI کی فیور میں نہیں جائے گا، وہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو فوج کے سپہ سالار آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے جنرل صاحب نے کی ہے اس کا بینیفٹ پاکستان کو ملے گا، اینڈ اٹ ول بی اے سرپرائز فار PTI اور گڈ نیوز فار پاکستان۔ صاحب یہ بتائیے آپ نے کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو رہی تھی، پھر ایک طیارہ آیا، جہاز آیا اور وہ میاں نواز شریف صاحب یہاں سے چلے گئے، تو ہمیشہ ڈیل ہوئی ہے، کالجم جماعتوں سے بھی بات چیت ہوتی ہے، ایک پاپولر لیڈر ہے اس وقت بھی عمران خان، ان کے آپ کو معلوم ہے فارم اگر 45 کے حساب سے تو وہ جیتے ہوئے تھے، اب ان سے سیٹیں بھی لے لی گئی، اب مذاکرات اگر سنجیدہ ہو جائیں اور ان کو بھی ایک اسی میں نیشنل اس میں لے کے آ جائے تو کیا برائی ہے اس میں؟ دیکھیں مذاکرات کا تو میں سب سے بڑا حامی خود تھا، مذاکرات کے اندر جتنا پش میں نے کیا ہے آپ لوگوں کے توسط سے، چینلز کے توسط سے، ٹاک شوز کے توسط سے، اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت حسن بھی بات چیت ہے، لیکن بات چیت مخلص ہونی چاہیے، ایمانداری پہ ہونی چاہیے، نیک نیتی پہ ہونی چاہیے، بے ایمانی پہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لیڈر کو مروا دیں، لیڈر کو جیل کروا دیں اور خود اقتدار کے مزے لوٹیں، جو کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کی شکل سے ڈرامے بازی PTI کی نظر نہیں آ رہی، آپ شکل سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، میں آپ کے سامنے بڑا ہوا ہوں، آپ لوگوں کے تلخ سوالاتوں کے بیچ میں میں نے ٹریننگ ہوئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ باتیں جو میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں 2.5 سال پہلے کر رہا ہوں، یا کابینہ کا حصہ جب تھا، جب اقتدار میں تھا، تو 190 ملین کے آپ لوگ گواہ نہیں ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے آگے پریس میں آ کے کہا، چینلز پہ آ کے کہا کہ یہ نیب کا کیس ہے، اس پہ جیل ہونی ہے، میں نے خان صاحب کو روکا، بنی گالا جا کے روکا، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اب یہ کوئی شاکر یا کوئی شاکنگ نیوز تو آنے والی نہیں ہے، جرم کیا ہے تو اس کا جواب تو دینا ہے۔ اب آپ کی جو بات ہے طیارے کی، طیارے تو آتے رہے ہیں، طیارے میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم لیڈرشپ کی بیماریوں کا بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ امریکہ میں نہیں، بیرون ملک رہے، اس سے قبل جو آپ کی پریس کانفرنس کی اس میں آپ کا جو انداز گفتگو تھا پریس کانفرنس میں بہت ہی پیارا تھا، ایک منجے ہوئے کھلاڑی ادھر چھکا ادھر چھکا مارتے ہوئے نظر آئے، آج آپ ایسا لگ رہا ہے کہ بیرون ملک جہاں سے آپ واپس آئے آپ بہت ہی کمزور پچ پہ کھڑے ہیں، آپ کے لبوں لہجے تھکاوٹ آئی ہے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، کیا باقی ہے عمران خان کی جانکاری جیت ہونے والی ہے اور آپ کی آ رہا ہے؟ دیکھیں نہ مجھے ان کی جیت سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں ان کے پاس جا نہیں رہا، نہ مجھے ان کی ہار سے کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ میں ان کے پاس جا نہیں رہا۔ اگر آپ کی میں زبان سمجھوں اور سمجھوں کہ اگر ان کی جیت ہوتی ہے تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر ان کی ہار ہوتی ہے تو مجھے پرابلم ہے۔ یہ پرابلم ہے کہ وہ ایک آدمی جو ایک اچھے سٹیچر کا آدمی تھا، ایک اچھا لیڈر تھا، وہ کس جگہ پر آ گیا، کس غلاظت کی پالیٹکس میں چلا گیا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ میری آواز میں گنگرج نہیں ہے، تو میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں، آپ کو میری گنگرج وہاں سے نظر آنا شروع ہوگی، اور کیونکہ میں اپنے استادوں کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کے آگے، کراچی کا ہوں، کراچی میں آپ لوگوں کے آگے بڑا ہوں، تو اتنے سالوں بعد میرا انٹریکشن آج پریس کلب میں ہو رہا ہے،
तो नेचुरली मैं एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ, और आप लोगों के साथ तो मेरी पहले भी कभी कोई लड़ाई नहीं थी, आज भी नहीं है। तो आप मुझसे कड़वे सवाल करेंगे, आपने सिखाया था तहम्मुल से उसका जवाब दे, तो मैं तहम्मुल नमाजी दिखा रहा हूँ, तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं थका हुआ तो मैं हूँ भाई। अरे एक बार ये देखिए ना, गंग गरज वाली आवाज आ गई। जो मुलाकात करेंगे हुकूमत से डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे ताकि ट्रम्प की अलमबरदारी हो जाए, उसके बाद ये इस वजह से ये डायरेक्ट टैक्सेस इस्तेमाल की जा रही है। दूसरा सवाल ये कि आप करेंगे हुकूमत स्टेबल होती जा रही है, लेकिन वजाहत नजर नहीं आ रही है। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे हैं वो भी कहीं पे थम नहीं रहे हैं, और पीटीए और हुकूमत के दरमियान जो इख्तिलाफात और मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी कहीं थम नहीं रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, हुकूमत कैसे सर्वाइव करेगी? देखिए, जहाँ तक आपका हुकूमत का या पीटीआई का सवाल है, तो दोनों ही छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कभी वो छुप जाते हैं, कभी वो छुप जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि बाय एंड लार्ज अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मुझे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन नाराज़ होते हैं लोग अगर वो हमारी नाकस और नालायक होने की वजह से अगर वो बेनिफिट अगर हमें पाकिस्तान में सिपा सलार दे रहे हैं, आर्मी चीफ साहब SIFC के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मैं उनको टीम मेंबर बना लेता हूँ, मैं टीम लीडर कहता हूँ, चले टीम लीडर कर देता हूँ, तो हमें इस पर किसी का क्रेडिट देना चाहिए कि भाई अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है, अगर सारे गधे समेत मेरे अगर नहीं कुछ करके दिया पाकिस्तान के लिए और किसी घोड़े ने आगे कर दिया, तो आप ये तो कहें कि घोड़ा है, तो मेरे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इन जनरल कहा, फिर वो स्पेसिफिक करके मुझे कहीं और ले जाएंगे। भाई ये बताइए कि मुल्क की तरक्की में सिपह सालार हमारी फौज किरदार अदा करती है, नो डाउट, लेकिन हमारी सियासत का वो काम नहीं करते, क्यों नक्शे कदम पे नहीं चलते ताकि मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सके? कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई शहरों कोई शिकार, एक जगह क्यों नहीं जमा होते? चांद भाई, आप लोगों को बहुत शौक है ना हम सबको जमहूरियत खेलने का, तो भाई जमहूरियत का हुस्न है, उसका मजा भी लूटना सीखे। हम तो अब सीख गए और एंजॉय भी कर रहे हैं। ये बताएगा कि आपने जो बात की कि मुल्क में सुख तरक्की हो रही है और SIFC और दूसरे जो मंसूबे हैं वो मुल्क की खुशहाली का सबब बनेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो सिंध में वैसे ही पानी की शार्टेज है। आप वापरा के वजीर भी रहे, तब भी आपने देखा कि कितनी शार्टेज थी। तो ये बताइएगा, आप जिन सुबह सालार की ये कह रहे हैं उनसे ये अपील करेंगे सिंध के लोगों को पहले पानी उतना है, अगर बाकी सिंध में पानी आएगा तो आप कराची में कहाँ से पानी पिएंगे? देखिए, जब तक हम तो भाई वैसे भी टैंकर का, हमारा ये जबरदस्त मुल्क है, इस मुल्क के अंदर नलका है, पानी नहीं है, लेकिन टैंकर का पानी मिलता है। इस मुल्क में खड्डे हैं, सड़कें नहीं है, लेकिन गाड़ियां चलती हैं। इस मुल्क में पोल है, तारे नहीं है, लेकिन बिजली नहीं आती, फिर भी मुल्क चलता है। इस मुल्क में गैस नहीं है, सिलेंडर पे चलते हैं, सिलेंडर महंगा हो जाता है, माइक्रोवेव पे चलते हैं, लेकिन ये मुल्क चल रहा है। तो इस मुल्क की ब्यूटी है, ये मुल्क चल रहा है। लेकिन नहीं, मुल्क का ही सारा हाल ये था। जिंदगी सवाल लीजिएगा, गवर्नर साहब फरमाते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े उसी यूनिवर्सिटी के वो चांसलर है, तो आप दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आप ये तरह बताइएगा, दूसरी तरफ गवर्नर हाउस में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें गवर्नर के रोल्स को बढ़ाने का मुतालबा किया गया। कुछ अरसे से सदारती निजाम की बातें हो रही है, ये इस गवर्नर का किस तरह इशारा है? मजीद जो ये मुतालबा सामने आ रहा है, देखिए, क्या बनने जा रहे हैं, जल्दी अपने चल रही है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, देखें सबसे पहले तो ये कि वो मुझसे राजी रहे। रफ्तार आप लोगों ने मेरी देखी है, परवाज भी आप मेरी देख रहे हैं, और अब इंशाल्लाह वो राजी रहे तो वो रुकेगी नहीं। चुगली करने वाले, साजिश करने वाले, नालायक, निकम्मे, जाहिल, करप्ट, चोर, बेईमान मेरा पहले भी कुछ नहीं बिगाड़ सके थे, मेरा आज भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और मेरा कल भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने आपको कहा ना, मेरी रफ्तार और मेरी परवाज, वो राजी रहे, कोई नहीं रोक सकता, ना मुझे किसी का डर है। नंबर एक। नंबर दो ये कि जब आप मुझसे मुल्की सतह पे बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझे इस टाइप की बातें, धूल वाली बातें क्यों कर रहे हैं सर? हम मुल्की सतह पर रहना फोकस्ड। अच्छा फैसल साहब, ये आपने बताया कि इमरान खान को गलत बताया गया, वो इसने तक पहुंचे हैं, तो इमरान खान को आप कहते हैं कि वो आपका लीडर भी है,
आपको पता है कि लीडर जो है वो दूर तक सोचता है। जो 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ और दीगर मामला हुए, अब जाके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेल से बाहर निकाला जाए किसी सूरत में, उनके कुछ नहीं हो रहा सर। किया जाए। सर कुछ क्या कहते हैं आप सर इसका? देखिए, मैंने आपका कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कचकोल लेके अगर बैकडोर मुज़ाकरात होते तो मैं भीख का कटोरा लेके आपका खड़ा होता, जो आज किया है उन्होंने पीटीआई ने। जुर्म की सजा सामने, इसका डाइवर्जन करने की कोशिश की, वो तो डाइवर्ट नहीं हो सकता। इंटरनेशनल प्रेशर की बात की, वो इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आया, वो भी आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आ जाएगा। इंटरनेशनल हवा इमरान खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए चल पड़ी है, ये मैंने आपको इतला दे दी। ये भी आप आइंदा हफ्तों में देख लेंगे। जहां तक आपने 20 जनवरी की पीटीआई तड़प से इंतजार कर रही है, मैं आपको कह रहा हूं कि 20 जनवरी से वो तड़प उनकी खत्म हो जाएगी और वो भी दूसरी तरफ आ जाएगी हवा। तो आपके सामने सारी चीजें। तो पाकिस्तान की जहां तक इंडिकेटर्स, पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान की तरक्की की बात है, उसको तो नहीं कोई रोक सकता। आप अगर बात करें कि आपने धोन, जबरदस्ती, बदमाशी, गुंडागर्दी, पॉपुलिज्म, झगड़ा, गाली गलोच, धरना मरना सब करने के बाद आपको क्या हासिल हुआ? आप और उस जगह पे चले गए। आपने रियासत पे अटैक कर दिया, आपने पोस्टर्स लगा दिया, आपने जला दिया, आपने शहीदों का तमस्करा उड़ा दिया, आपने फौजियों के बारे में गालियां दे दी, फौजियों को शहीद कर दिया। सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म पहने वाले पुलिस की बात कर रहा हूं, आप हैं, मैं हूं, हमारे मीडिया के बहुत सारे बच्चे शहीद हुए हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। अरशद शरीफ का केस अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। देखिए जी, इसके सवाल के अंदर आप मुझे कहें कि अगले 15 मिनट में मैं कहाँ होऊंगा, ये मैं आपको नहीं बता सकता, नंबर 1। नंबर 2 है कि मैं अपनी जो बात करता हूँ उस पर कोशिश करता हूँ खड़ा रहूँ। अभी तक तो मैं अपनी जगह के ऊपर हूँ जहाँ मैं था, और मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता और पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, ये गुड न्यूज़ है। और अभी भी मैं चाहता हूं कि जो आग तेजी से फैल रही है दरमियान पीटीआई के और इमरान खान साहब के लिए, और मजीद तकलीफात और मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं, उसको खुदारा मुज़ाकरात के तहत उस पर इतना रहम करें पीटीआई वाले, कम से कम उस आग को उस हिस्से तक ले आएं जहां तक उन्होंने जुर्म किए हैं, उनकी सजाएं वो पाएंगे या खाएंगे या वो फेस करेंगे। लेकिन ना करदा चीजें यही पीटीआई के लोग वो भी इन पर थोप रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये जेल में रहे, और ये मैं आपको कहता जा रहा था, और अब आपके पास शवाहिद आप दिखा रहे हैं, मीडिया वाले, मैं नहीं दिखा रहा। उन्हीं के अपने लोगों की जबानें, बातें, इंटरसेप्शन सारी आप लेके आ रहे हैं, सब कुछ सामने। एक सवाल है सर, आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही यहाँ पे। सिंध के लोग आजकल बड़े एहतियात कर रहे हैं और उनके लिए हक भी बन रहा है कि उनके लिए बड़े से किनार बन रहे हैं, ऊपर हमारे ऊपर वो बड़े से किनार बन रहे हैं बलूचिस्तान के नाम से। तो इसमें आपका क्या रद्द अमल है? आप कौन सा बयान देना चाहते हैं कि वाकई वो किनार सिंध के लिए कितने नुकसान का साबित हो? देखिए, मुझे जब मैं फेडरल मिनिस्टर वाटर्स था तभी मैंने कहा था कि सिंध के पानी का इंसाफ का मामला सही नहीं है, उसको देखना चाहिए। और एथनिक की मीटिंग में भी मैंने ये बात कही थी। मेरा मौका आज भी है, सबको इंसाफ से मिलना चाहिए, और सिंध को भी मिलना चाहिए, और मिलेगा और लेंगे। तो सर बड़ा साहब, इसका मतलब ये है कि खान जो है ट्रम्प का इंतजार छोड़ दे? बिल्कुल छोड़ दे जी, ट्रम्प का इंतजार छोड़ दे। उनका ट्रम्प कार्ड अब ट्रम्प कार्ड नहीं रहा। और आपने ये देख लिया है कि जो तसलसल से बयानात आ रहे थे वो काफी हद तक थम गए। और क्या कहते हैं, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर पीटीआई बिफोर 20th जनवरी and will be a very good news for Pakistan before 20th of January. मेरा सवाल ये है कि कल एक जजमेंट आने वाला है, उससे आप एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपको इस बारे में नो हाउ आगे लेके अपने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जुर्म की सजा मिलेगी, अहम केस है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते और आप ऐवान बाला सनट पे पहुंचे, कैसे पहुंचे? दोनों सवालों का आपको जवाब देता हूँ। आप मेरे बुजुर्ग भी, मेरे बड़े भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर खुदा न खास्ता इस आदमी ने कत्ल किया है और कत्ल के शवाहिद वीडियो पे मौजूद हैं, तो इस आदमी को कत्ल के ऊपर सजा ही होगी, जजा तो नहीं हो सकती, फूलों का हार तो नहीं बनाया था। तो मैं तो ये बात आज नहीं कह रहा, मैं आपको 2.5 साल पहले की बात अपनी नहीं कह रहा, मैं 3.5-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब काबीना में किसी ने सोचा नहीं था कि ये होगा। मैंने उस वक्त इमरान खान साहब से कहा था ये काम ना करें और इसमें नैब का केस होगा और अब वो जेल होगी। तो मैं तो 4 साल से एक्चुअली बात कर रहा हूँ, 4 साल से पहले, 3.5 पौने 4 साल से भी कर रहा हूँ, जब ये केस हो रहा था, जब साइन हो रहा था। फिर मैंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी या जब मैं निकाला गया तब भी मैंने ये बात की, और 2.5 साल से मैं मुसलसल सारी जो बातें कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ। और मैं आपको अल्लाह की ज़ात करने वाली सजा जजा अल्लाह के हाथ में, लेकिन मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जब ये काम हो रहा था तो मुझे पता था कि इसका अंजाम, चोरी का अंजाम, जुर्म का अंजाम सजा है, और वो सजा
होनी है। इसमें मुझे कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, इसमें मुझे और आपको श्योर होना चाहिए। दूसरा आपने सवाल मुझसे ये किया कि मैं ऐवान बाला में कैसे पहुंचा। देखिए जी, ये सवाल मुझसे तब भी होता जब मैं एमएनए बना, जब मैं फेडरल मिनिस्टर बना। सुने ना सर, तब फेडरल मिनिस्टर बना तब भी मुझसे ये सवाल था, फिर मैं सेनेटर बना तब भी मुझसे सवाल था, और सेनेटरशिप मैंने इमरान खान साहब की पार्टी के बाद, जो मुझसे किसी का बाप नहीं ले सकता था, मैंने वो सेनेटरशिप खुद वापस की सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि एथिकली ये सीट खान साहब की है, पीटीआई की है, मैं नहीं रख सकता, और जिसको जजमेंट का हिस्सा भी बनाया गया। मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूं जो इमरान खान साहब की आज भी सीटों में बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इमरान खान के खिलाफ साजिशें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद आज भी उन्हीं इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। अब आपका सवाल रहा कि मैं ऐवान बाला में कैसे पहुंच गया, तो देखिए जी, मैं जैसे आपके पास पहुंच गया वैसे मैं ऐवान बाला में पहुंच गया, और ऐवान बाला जो है वो मेरी आखिरी मनसब नहीं है। इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा, मेरी रफ्तार आपने देखी है, मेरी उड़ान, मेरी परवाज इंशाल्लाह आज के दिन के बाद आप और देखेंगे इंशाल्लाह, और मुझे आप इससे आगे जाते हुए देखेंगे, और मैं आपको कोशिश करूंगा जो मैं कह रहा हूँ वो अल्लाह ताला पूरा भी करे और करके भी दिखाऊंगा। कल भाई देखिए, मैं खान साहब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैं आसान फरामोश उनका नहीं। अगर उनको कोई मुझसे ज़रूरत है, चाहे वो पानी का गिलास है, वो मुझे बुलाएंगे, मैं आधी रात को जाऊंगा। ना मैंने उनके पास जाना है, ना मैंने पार्टी को ज्वाइन करना है, ना मैं ये सब कुछ पार्टी ज्वाइन करने के जा रहा हूँ, ये बड़ी क्लैरिटी रखें। ना मैं पार्टी में जा रहा हूँ, ना मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ, ना मैं इमरान खान साहब को से कुछ मांगना चाहता हूँ। इमरान खान साहब को मुझसे क्या चाहिए, अगर वो पानी का गिलास है, कतरा भी है, वो आधी रात को भी आवाज़ देंगे तो मैं पुराने ताल्लुक के तहत जाऊँगा। उनको अगर मुझे कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं उनको बताऊंगा कि मैं आपको इस बर्बादी उस वक्त भी रोक रहा था, आज भी रोकूंगा कि मजीद बर्बादी ना करें। ना मैं किसी और सूबाई पोजीशन के लिए तका दौड़ कर रहा हूं जो लोग जमगोया कर रहे हैं। मैं खुशुजा हूं, लेकिन दिस इज नॉट माय लास्ट डेस्टिनी इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये कहा कि आपकी उड़ान ऊंची है, क्या शहबाज शरीफ जाने वाले हैं? नहीं, बर्फ पिघलने जाएगी या मजीद बर्फबारी की तरफ? देखिए, इमरान खान साहब आज के दिन तो बहुत बुरे फंस गए, और उनके इर्द गिर्द के लोग उनको मजीद ऐसी जगह पे ले जाएंगे जो मैंने कहा ले गए हैं। मुझे अभी भी उनकी जान का और उनकी जिंदगी का कंसर्न है। आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं स्लिप ना हो जाए मेरे माइंड से, कि ये जो आपकी इंटरनेशनल पोजीशनिंग पाकिस्तान की होने जा रही है इंशाल्लाह, जहां हमारे चीफ सिपहसालार बहुत जल्दी कहेंगे कि व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान के लिए क्या है, उसमें मेरी तवक्कुआत जो मैं पूरे बाहर से होके आया हूँ उसके तहत ये है कि उम्मीद भी मैं करता हूँ कि बहुत जल्दी आपको शायद इंशाल्लाह ये भी नजर आए कि हम इंडिया से भी फार अहेड और एक्सक्लूसिविटी के साथ नजर आए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको वक्त से पहले बता दी, और मैं आपको सालों की बात नहीं कर रहा, हफ्तों और महीनों की बात कर रहा हूँ। भारत के साथ ताल्लुकात क्या अच्छे होने जा रहे हैं क्या? ये आपने भी लास्ट में बात की है, आगे चीज जो है वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ में ताल्लुकात। देखिए, मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं नहीं चाहते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी तो हमारी सिग्निफिकेंस, हमारी तरजीहात दुनिया के लिए, पाकिस्तान की तरजीहात बढ़ जाएंगी, इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंट हो जाएगा, फार अहेड होगा। और अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो हमारा क्यों नहीं इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, होने चाहिए। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान शायद ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, तो वो क्या नतीजा निकला, और एमक्यूएम के पास जो आप पैगाम लेकर गए थे उन्होंने कोई रेस्पॉन्स दिया? देखिए जी, मैं पीपल्स पार्टी के पास भी गया हूँ, मैं एमक्यूएम के पास भी गया हूँ, मैं बाप पार्टी के पास भी जाऊंगा, मैं क्या कहते हैं जो पीर पकौड़ा साहब के पास भी जाऊंगा, मैं जमात इस्लामी के पास भी जाऊंगा, मैं अचकजई साहब के पास भी जाऊंगा, मैं मक्सी साहब के पास भी जाऊंगा, मैं मैंगल साहब के पास भी जाऊंगा, जो सिस्टम से बाहर है मैं उनके पास भी जाऊंगा, मैं तहरीक लब्बैक के पास भी जाऊंगा, मैं सबके पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे सबको कोलाइड करना है, साथ लेके चलना है। जो बाहर इक़्तिदार के अंदर, लेकिन हमने पाकिस्तान को लेने के लिए सबको साथ लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल वावडा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई के रहनुमा खुद बानी को जेल में रखना चाहते हैं। पीटीआई बानी के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस हैं। इनकी पार्टी से चीजें सामने आ चुकी हैं कि बानी को जेल में रहना चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।